Sanghvi हैं from DSP, and he will be having his presentation in which he'll walk us through all the things that he has, all the insights that he has for us. हमारे लिए जो भी वो आज लाए हैं, हम उनको उनके साथ वो देखेंगे, एंड उसके बाद मैं आपको ग्रो के बारे में बताऊंगा, एंड उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे. तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको जो भी क्वेश्चंस है आप हमारे लिए डाल दीजिए, चाहे वो ग्रो के बारे में हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स के बारे में हो, चाहे ओवरऑल मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, जो भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज वहां पे डाल दीजिए. जैसा कि आपको पता है, अब इंडिया करेगा सेशन काफी समय से हो रहा था और हम हर एक शहर में जाके कर रहे थे. वी यूज्ड टू गो टू इंडिविजुअल सिटीज एंड डू इट, बट सिंस द पैंडेमिक हैपेंड, जब से ये पैंडेमिक हुआ हम ऑनलाइन आ गए हैं. इसके दोनों एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं, बट अभी के लिए हम इसी पे एडवांटेजेस पे ध्यान देंगे कि हम वी कैन केटर टू अ लार्जर ऑडियंस. एक बार में हम हजारों लोगों से मिल सक रहे हैं और उनके क्वेश्चंस ले पा रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हम जब एक सिटी में जाते तो वहां पे कुछ हजार तो नहीं, लेकिन 500-600 ऐसे लोग आ जाते थे. बट स्टिल विद दिस व्हाट हैपेंस इज, अगर आप शायद अगर आप दिल्ली से हैं और हम दिल्ली में इवेंट नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस इवेंट को देख पा रहे हैं, तो दैट इज एन अपसाइड टू ऑनलाइन इवेंट्स. सो नाउ Gaurang, I think you can take over from here. I'm sure our viewers are eagerly waiting to hear you. थैंक यू सो मच शेखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड बाकी सब जितने हमारे दोस्त लोग आए हैं यहाँ पे, आप सबका स्वागत. सो आज हम क्या बात करने वाले हैं कि हाउ बेस्ट टू मैनेज योर मनी व्हेन इन योर 20s. आई विश मैं जब छोटा था, जब मैं अपने कॉलेज से पढ़ाई करके अपनी फर्स्ट जॉब ली थी, somebody would have told me about these tricks and I would have been in this thing. So hopefully this is going to be insightful, आप सबको मदद आएगा, interesting लगेगा. But before we get into it, आजकल I think for some of you all who might have this reference on this thing कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी हो गया, and it is a reality, especially आपके कोविड के टाइम में. How does all of us become आत्मनिर्भर come together, right? Because all of us want the best roti, the best makan, right? And our intention also is always to ensure they get the latest iPhone or also to make crazy पैसा, right? हम सबको सबका ambition रहना चाहिए और बिल्कुल सही भी है, because in today's world we all have to start talking openly that we all want to make more money legitimately, but we all aspire to make money. But the question is, how do we get there? Here is 3 simple steps to how to make your money. ये 3 तरीके हैं. सबसे पहले कहते हैं कि पेरेंट्स से आत्मनिर्भर बने. Don't let your parents manage your money. Hopefully you learn how to manage it. Most 40-year-olds I know, still their parents manage it. So hopefully आप लोग सब अपने खुद से सीखेंगे कि अपना पैसा कैसे मैनेज कर सकें. दूसरा है सरकार से आत्मनिर्भर, right? How do you actually reduce your tax burden and whatever legally is allowed. And last but most important, bonus से आत्मनिर्भर, right? All of us have additional expenses and normal time में हम लोग यही होता था कि सारा महीने की खर्चा हो ही जाता था, but we would expect and wait for the bonus period, right, to cut our additional expenses. So hopefully we are becoming Atmanirbhar from all 3 on a lighter heart note. But why do you actually become Atmanirbhar, right? What do you do beyond these 3 things to become Atmanirbhar? The reality is कि हम सबको एक current gratification से बाहर जाना है. The whole society around us, everybody around us is designed to basically ensure that we spend instantly. But every time आप कभी खर्चा करते हैं, एक बात सोच के रखिए कि आप अपने older self से कुछ steal कर रहे हैं. अगर ये concept आपके आप में है that current gratification should not be about stealing from your future self. There is a very powerful statement, and once we understand it, that we then will hopefully make the right decisions at the right point of time. Also, remember, current savings is future earning. आप जितना भी आज सेव कर पाए वो आपकी एक फ्यूचर आमदनी बन सकती है, और इसकी ये रियलिटी छोटे से छोटे हैबिट बनाने से ही आती है. So hopefully all of us will not only chase status, but over time make it our mantra to chase wealth alongside with it, because all of us know that status is temporary but wealth is permanent, right? स्टेटस आती है जाती है, कभी ऊंचा नीचा होता है, बट वेल्थ एक बार बन जाती है वो आपके साथ रहती है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए. तो होपफुली एक तरीका है इज ओनली थ्रू डिसिप्लिन
एंड डिसिप्लिन इन टू मेथड्स, एक तरीके हैबिट बनाना कि हम छोटी सेविंग्स कॉन्स्टेंटली करते रहें, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन अराउंड अस इज। जितना हो सके खर्चा कम करें और अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके सोचें या अपने स्किल में करें, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैबिट बनाएं, और उस हैबिट को पेशेंस के साथ, व्हेन वी कंबाइन हैबिट विद पेशेंस, दैट्स व्हेन कंपाउंडिंग हैपेंस। अनफॉर्चुनेटली बिना पेशेंस, मतलब लॉन्ग टर्म पेशेंस के बिना पैसा नहीं बढ़ता है। सो हेंस वी शुड हैव लॉन्ग टर्म व्यू व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग और सेविंग मनी फॉर इट। लाइक वी ऑल नो, कंपाउंडिंग कैन ऑल्सो वर्क अगेंस्ट अस, कि जिस तरह हम कोरोना में देख रहे हैं कि कोरोना इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कंपाउंडिंग, कि केसेस कितनी जल्दी बड़े हो सकते हैं। उसी तरह वेल्थ भी बड़ा होता है, बट थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता है, कोरोना में काफी कम टाइम में। सो होपफुली यू लेट कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू एंड नॉट अगेंस्ट यू, right? Let's think of 3 simple steps on how do we also get there, right? One is patience, जिस तरह हम बात कर रहे थे। Let's take an example कि आपने अगर 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल है 8% फॉर 30 इयर्स अगर सेव करते, तो आपके 30 साल में यह अमाउंट 10 लाख हो सकता है, बट वो अमाउंट को बढ़ते में टाइम लगता है। सो होपफुली वन स्टेप ऑफ कंपाउंडिंग इज पेशेंस। तो पेशेंस रखें, जितना जल्दी चालू करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 20 साल के हैं और मैं 30 साल का हूं, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम 1 लाख रुपया हर वर्ष 20 वर्ष के लिए सेव करेंगे। तो आपकी जब आप सेव करते रहे, तो लेट से आप स्टॉप हुए 40 इयर्स पे, और मैं अपने 20 साल में 50 वर्ष पे, हम लोग सब 60 पे रिटायर होंगे। बट अगर आपने जल्दी स्टार्ट किया अपने 20s में, तो वो ही पैसा हर 1 लाख रुपया 20 साल तक कंपाउंडेड एट 8% कैन बिकम अप टू 2.3 CR। बट मेरा पैसा एट 60 व्हेन आई रिटायर, बिकॉज उसके बाद नया पैसा तो नहीं मिलेगा मेरे को इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरा पैसा आपसे आधा से भी कम है। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस एंड अर्ली स्टार्ट। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज स्टार्ट एज मच एज यू कैन एंड थोड़ा थोड़ा बढ़ा के रखें। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने वो 30 साल में आपने 1,10,000 सेव किया और मैंने सिर्फ 1 लाख सेव किया। सो यू सेव ओनली 1.1 lakhs, आई सेव 1 लाख। बट इन 30 इयर्स आपकी और हमारी आमदनी के बीच में 12 लाख का फर्क होगा। बट आपने तो 10,000 रुपए 30 साल के लिए, मतलब 3 लाख ही एक्स्ट्रा सेव किया। So 3 lakhs can give you 12 lakhs worth of return. So to capture, compounding happens when patience and when you start early and as much as you can, right? जितना ज्यादा कर सके उतना सेव करना चाहिए आपको। जिस तरह कहते हैं कि fruit is not produced overnight. You know, a seed takes a while to create plants, and from those plants, fruits are created. So it takes a while before we can eat our fruit. And hence, patience is the only virtue that we all need to have around. You know, एक लोग कहते हैं कि compounding is only for money. It is not. Compounding also actually works very well for y'all, for people around you. सबसे ज्यादा अपने घर वालों से, अपने दोस्त लोगों से वो रिलेशनशिप बनाए रखना, अपने वर्क प्लेस में, अपने जहां पे आप रहते हैं, आपके शहरों में, आपके घर के आजू बाजू। सो मनी जस्ट डज नॉट कंपाउंड, पीपल रिलेशनशिप्स ऑल्सो कंपाउंड। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू बोथ and not just one. So I hope each of y'all will let compounding work for you than against you around the same. Hopefully आप लोग सब चालू आज कर सकें, जितना भी छोटा अमाउंट जैसे भी कर सकें, छोटे अमाउंट से करें। बट सबसे पहला चीज बजट बनाएं। ये बजट, कई लोग जो कॉलेज में होते हैं जिनकी इनकम नहीं होती, वो मुझसे पूछते हैं कि बजट कैसे बनाएं। ऑल ऑफ अस हैव अ पॉकेट मनी, राइट? आपको भी पॉकेट मनी मिलती है। लेट्स बिल्ड अ पॉकेट मनी शुड बी योर इनकम, राइट? सो एस्टैब्लिश ऑन इनकम वट एवर इट इज। बट अगर आपकी इनकम सैलरी वालों के लिए, मैं नॉर्मली कहता हूं आपकी इनकम आपकी ट्रू सेविंग है, राइट? बट आपकी जो भी इनकम है उसके बाद आपके नीड्स और वांट्स में डिवाइड करिए कि आपके जो जरूरत के खर्चे जो हैं और ऊपर के खर्चे जो हैं उसको डिवाइड करिए, और हफ्ते टू हफ्ते या महीने टू महीने लिखिए। बजट का मतलब नहीं है कि एक एक रुपए का हिसाब रखना। बजट का मतलब है कि मोटा मोटा आपको पता है कि आपने कहां पे खर्चा किया और कहां पे आप खर्चा अननेसेसरी या बिना जरूरत के किया, राइट? तो आपकी नीड वर्सेस वांट। नीड मतलब फूड, हाउसिंग, मेडिसिन और हाइजीन। आजकल हाइजीन के लिए खर्चा बिल्कुल नीड है। यूटिलिटी पेमेंट की, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकॉम, आपके एजुकेशन, ये आपके नीड बकेट में आते हैं। वांट्स आजकल मूवी हॉल से अमेजॉन और नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट हो गए हैं। प्राइम और नेटफ्लिक्स हो गया है, हॉटस्टार हो गया है। हमारे मॉल और शॉपिंग अब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन हो गए हैं।
हमारा रेस्टोरेंट अब आजकल स्विगी जोमेटो हो गया है, तो टू अवॉइड की नीड और वांट्स में आप अपना खर्चा डिवाइड करके रखिए। देन सेकेंड स्टेज में थोड़ा सोचिए, एक रूल होता है कि कुछ खर्चा वो Amazon का बटन दबाते पहले थोड़ा सोचिए, एक दिन बाद करिए, बट थोड़ा थिंक बिफोर यू स्पेंड, ट्राई एज मच शेयरिंग एज मच एज पॉसिबल। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है ओटीटी पासवर्ड्स के साथ आप लोग शेयर करते ही हैं दोस्तों के साथ, इट सेव्स सो मच मनी कंपेयर टू बाइंग इट योरसेल्फ, राइट? सो होपफुली शेयर वर्सेस बाय का एक आइडिया, एंड द आइडिया इज टू स्टार्ट टू सेव टुडे। जितना छोटा से छोटा सेव कर सकें, टू स्टार्ट बजट इट, थिंक बिफोर वी स्पेंड एंड स्टार्ट टू सेव। दीज आर 3 सिंपल नुक्स जो कहते हैं। बट इन्हीं नुक्सों में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्स है कि उसका डिविजन कैसे करें। तो एक बहुत सिंपल रूल है 50-30-20 रूल। कई लोगों के लिए ये 40-40-20 भी हो सकता है, बट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी 50% में नीड्स में कवर हो जाए, बाकी ऊपर की 30% वांट्स में है, बट कुछ भी हो आप अपना 20% सेविंग्स कर सकें। नाउ फॉर दोज पीपल हु आस्क मी सेइंग गौरांग अगर हम ज्यादा कर सकें, नथिंग लाइक इट, उससे देयर इज नथिंग बेटर दैट यू कैन डू टू सेव मोर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रूल इज ओनली टू टेल यू ऑल दैट 20% मिनिमम सेव करना चाहिए। अब उसके लिए दो चीजें कर सकते हैं, अगर इनकम कम है तो फाइंड आउट करिए या फिर अपनी स्किल बढ़ाइए ताकि इनकम बढ़ा सकें, या दूसरा खर्चा अगर ज्यादा है तो कम करिए। Find ways to do this. Whole objective of doing this is to ensure that we get to 20% minimum saving of our life. Now the question comes, where to get started with all of this? हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने ऑप्शंस आते हैं। इक्विटी आया, बॉन्ड्स आया, बैंक डिपॉजिट्स हैं, अपने फिक्स्ड डिपॉजिट जिस तरह बोलते हैं, पीपीएफ है, लाइफ इंश्योरेंस, गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड। इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कहां से चालू करें, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। बट नॉर्मली कहते हैं कि बिफोर टेकिंग अ बैंक लोन और अदर थिंग, स्टार्ट टेकिंग बिल्डिंग एन एसआईपी। आप एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से ही अपनी ये जर्नी चालू करें। और वो कुछ भी में हो सकता है, वो आप अपने बैंक डिपॉजिट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बट स्टॉक मार्केट उसी को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको बहुत ज्यादा टाइम हो स्टडी करने का और उसमें कॉन्स्टेंटली अप्लाई करने का। ना करना हो तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहां पे प्रोफेशनल मैनेजर्स जो पूरे दिन यही काम करते हैं आपके लिए आपका पैसा सही जितना भी हो सके निवेश करते हैं। बट आपको समझना चाहिए हर चीज में अलग टाइप के रिस्क हैं और सेफ्टी हैं, उसको समझना जरूरत है बिफोर इन्वेस्टिंग अराउंड द सेम। आप याद रखिए कि आपकी सैलरी सिर्फ 8 से 10 घंटे के हिसाब से बढ़ सकती है, राइट? उतना ही एक एवरेज में आदमी काम कर सकता है, बट योर एसेट्स कैन ग्रो 24/7। सो होपफुली वी ऑल शिफ्ट फ्रॉम on only getting salary income and over time getting our assets to make money for us around the same। बट लोग बोलते हैं कि सबसे पहले मैं कल सुबह से उठ के मैं इन्वेस्टमेंट करना चालू करूं, वो नहीं सही है। सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड समझना इन योर 20s, इफ यू कैन बिल्ड एन इमरजेंसी फंड इन योर अर्ली 20s देन यू हैव अचीव्ड समथिंग कंसिडरेबल अराउंड द सेम। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एन इमरजेंसी। इट इज द मनी दैट इज सेट असाइड फॉर इमरजेंसीज इन अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड सर्कमस्टेंसेस विच कम विदाउट अ वार्निंग। अगर देखें तो कोविड एक बहुत ही अच्छी तरह एग्जाम्पल है इमरजेंसी फंड का जिसको रहना चाहिए। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? एक तो हेल्थ हो सकती है, हेल्थ के लिए आपकी और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर जो रियलिटी आजकल चल रही है जो लॉस ऑफ इनकम, वो भी हो सकता है अराउंड द सेम। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच टू सेव इन द इमरजेंसी फंड। अगर आपकी एक इनकम है और फिक्स्ड इनकम सैलरी है तो अप टू 3 to 6 months ऑफ योर मंथली सैलरी शुड बी सेव। बट अगर आपका इनकम फ्रीलांसर या सेल्फ बिजनेस का है then it between 8 to 10 months because we are not sure how long the period of in a freelancer or a self employment business कि वो गैप आएगा। सो होपफुली वन ऑफ द सवाल आता है कि बट मेरे पास तो इंश्योरेंस है। द रियलिटी इज कि इंश्योरेंस विल नॉट पे फॉर एवरीथिंग इन केस ऑफ एन हेल्थ कॉन्टेक्स्ट। हेंस इंश्योरेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड फर्स्ट। So before choosing your emergency fund, think of your nature of work, your risk of your layoff in your work, your family health status, and if you're married or not, and how many dependents you all have. So hopefully all of y'all will start.
But while it is very important to plan for emergencies, another place that is very important to plan for is taxation. Think of taxation is that every time you bite an ice cream, that अगर आपने 100 रुपए की आइसक्रीम ली है, उस पे आपने पहले टैक्स भरा था, उसके बाद आपको वो पैसा मिला है, प्लस उस पे आप जीएसटी भरने वाले हैं. So think of every time you, I'm sorry मैं अगर आपकी आइसक्रीम eating habits पे डाउट मार रहा हूँ, but every time you eat an ice cream, think about it, you're already paying tax for it. Hence, I always say that saving tax legally, please understand, saving tax legally is your fundamental right. ये एक तरीका, मतलब डोंट प्लीज, अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में देखेंगे तो नहीं है, बट एक बनिया गुजराती की तरफ से सेविंग टैक्स लीगली बहुत इंपॉर्टेंट एंड अहम चीज है जो ऑल ऑफ अस शुड स्टार्ट डूइंग. इन समरी, व्हाट शुड वी डू? वी हैव टू गो टुवर्ड्स लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. आप चालू करेंगे अपने सॉल्वेंसी से, जहां पे आपके अगर डेट हैं, कोई आपकी एक्सपेंसेस हैं जो पहले से हैं, उसको आप पहले मिटाएंगे ताकि आप लेवल 2 स्टेबिलिटी पे हैं. उसके बाद आपको डेट फ्रीडम, 100% फ्रीडम चाहिए, जहां पे आपका इनकम और एक्सपेंड इमरजेंसी फंड प्लस आपके कोई डेट नहीं है. वैसे ही आते आते सिक्योरिटी और फिर इवेंचुअली अबंडेंस पे आ सकते हैं कि आपके पास ज्यादा पैसा है. सो वी ऑल हैव टू गो थ्रू दीज स्टेजेस, एंड टू टेल यू आई एम एट स्टेज नंबर 3, ट्राइंग टू बिकम माई सेल्फ टू बी डेट फ्री. तो वैसे ही सबकी जर्नी होगी और सबको ये जर्नी से जाना पड़ेगा, राइट? In summary, plan for your savings by writing your short-term goals or long-term goals around the same. Build a budget by I in a, आप अपने किताब में लिख सकते हैं, एक्सेल शीट पे बना सकते हैं, बट अपने खर्चों के बारे में, अपने फाइनेंशियल आइडियाज के बारे में दोस्तों से बात करिए, फैमिली मेंबर्स, ग्रैंड पेरेंट्स से बात करिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है और बहुत नॉलेज आती है. क्वेश्चन आता है कि वाई सेव? बिकॉज हैबिट ऑफ सेविंग्स कंपाउंड ओवर टाइम and it's a vicious circle around the same. Why plan? Because freedom to live comes from financial planning. तो सब financial planning करना बहुत जरूरी है. And why invest? The idea to invest is to beat inflation, because reality है price increase होगा, ये बहुत सालों से होगा और फ्यूचर में भी होगा. जिस तरह ग्रोथ आएगी, ग्रोथ के साथ प्राइस इंक्रीज आएगी. So hopefully you want to beat inflation as well and be patient, because there is no short. कोई get rich quick scheme नहीं है. पेशेंस से ही पैसा डबल होता है. इन समरी, प्लान योर सेविंग्स, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, park minimum requirement in liquid fund, and for long term invest in maximizing your return. Invest in yourself, in your education, in any form. In your 20s, spend your 20s to save for improving your lives and improving your skills around. But long term, never forget your partners, your friends, the people, the company that you work with. Thank you so much. I hope this is exactly me wearing the same shirt coincidentally, but happy to answer any questions. Over to you, Shekhar. Great. Thanks, Gaurang. We'll quickly, I'll do a short, quick presentation and then we can start taking questions. Okay. Welcome back to my presentation, I guess. मैं आपको जल्दी से ग्रो के बारे में बता देता हूँ, and then we will go back to asking Gaurang questions, right? So I'll just quickly share my screen. Right. So जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, ग्रो को mainly तीन reasons के लिए start किया गया था. The first reason that because of which Groww was started was to make different kinds of investment options accessible. जैसा आप जानते होंगे, इंडिया में लोगों को FD और गोल्ड बहुत पसंद है, बट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ये सब का ज्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, और उनको अगर जानकारी है तो ऑप्शंस उतना पता नहीं होता है कि कहाँ करे, कैसे करे, किस ऑप्शन के थ्रू करे. तो इस ऑप्शन को एक इजी एक्सेस देने के लिए ग्रो को स्टार्ट किया गया था. सेकेंड रीजन वाज ट्रांसपेरेंसी. हम चाहते हैं कि जैसे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी जानकारी आराम से मिल जानी चाहिए. इट शुडंट बी डिफिकल्ट टू फाइंड इंफॉर्मेशन. तो जस्ट ऐसा नहीं हो कि आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आपको किसी और के पास जाके पता करना पड़े, जो कि which was how traditional investing in India works. You have to go to someone who is managing your investments, जिनके थ्रू आपने इन्वेस्ट किया और वहां से आपको जानकारी मिलती थी. तो ये एक
हर्डल को हटाने के लिए। और तीसरा जो बात हम हमेशा कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए। सो इफ यू आर एन इन्वेस्टर हु हैज अ लॉट ऑफ मनी, अगर एज एन इन्वेस्टर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तब आपको बहुत अच्छी सर्विस मिल जाती है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई नया इन्वेस्टर है जिसके शायद इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतनी बड़ी नहीं है, उनको यूजुअली उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिलती है। तो ग्रो का अटेम्प्ट ये है कि चाहे आप कितना भी बड़ा या छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें, आपको सर्विस हमेशा अच्छी मिले। राइट। सो चलिए अब मैं ग्रो के बारे में जल्दी से आपको बताता हूँ। जब आप ऐप खोलेंगे तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। ऊपर आप सर्च टैब है जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक के नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, और नीचे 2 टैब्स हैं, एक म्यूचुअल फंड टैब और एक स्टॉक्स टैब। यहाँ पे स्टॉक्स का टैब दबाया गया है तो उसके नीचे आपको ये वाली मेन्यू दिख रही है जो कि म्यूचुअल फंड की मेन्यू है। अच्छा, मैं बताना भूल गया, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया स्लाइड। ग्रो पे साइन अप करना 100% पेपरलेस है, आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इट्स 100% पेपरलेस, आपके लैपटॉप या स्मार्टफोन यूज करके कर सकते हैं। और अगर आपकी KYC नहीं हुई है तो हम आपके लिए वो भी करा देते हैं। राइट। सो नाउ अगर आप म्यूचुअल फंड पेज खोलेंगे कोई भी, तो आपको ऐसे पेज पे लाया जाएगा। ओके। एंड अगर आप इस पेज में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको उस म्यूचुअल फंड का ऐसा कोई भी डिटेल नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले, चाहे वो एक्सपेंस रेशियो हो, पास रिटर्न्स हो, उसके फंड मैनेजर का नाम हो, होल्डिंग्स हो, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। आप ग्रो पे वन टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और SIP के द्वारा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, विच मीन्स मंथली इन्वेस्टमेंट। Just 1 second, I think there's a problem here. मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करना रोक रहा हूँ। हाँ, sorry, I will quickly get started. हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, आई थिंक आई एक्सीडेंटली ओपनड एन ओल्डर प्रेजेंटेशन, उसके लिए माफी चाहूंगा। सो जैसा कि मैं कह रहा था, जब आप ऐप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। म्यूचुअल फंड का एक टैब है और एक स्टॉक्स का टैब है, और स्टॉक्स का टैब कुछ इस तरह का दिखता है, एंड म्यूचुअल फंड का पेज इस तरह का दिखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसी तरह ये है स्टॉक्स का टैब, यहाँ पे भी स्टॉक से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप वन टाइम या SIP मंथली से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता, म्यूचुअल फंड डज नॉट मीन SIP ओनली। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर महीने ही इन्वेस्ट करें। अगर आप चाहें कि एक बार इन्वेस्ट करके फिर दोबारा ना इन्वेस्ट करें, जो इन्वेस्ट किया उसको छोड़ दें और वहीं पे रुक जाएं, तो वो ऑप्शन भी होता है। एंड जस्ट टू मेक दिस फर्दर क्लियर, बहुत लोगों को लगता है कि अगर मैंने SIP स्टार्ट किया तो उसमें वन टाइम नहीं कर सकते हैं, या सिप स्टार्ट कर दिया है तो बस एक ही सिप कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अगर एक म्यूचुअल फंड है, आप उसी एक म्यूचुअल फंड में जितने चाहे उतने बार सिप चला सकते हैं। बार ही नहीं, एक साथ 2-3 भी चला सकते हैं। और उसी म्यूचुअल फंड में सिप, जब व्हेन सिप इज ऑलरेडी रनिंग, उसी के साथ साथ आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। दिस इज द डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड वो जगह है जहां पे आपके सारे म्यूचुअल फंड्स के आपने जिनमें इन्वेस्ट किया है उसका लिस्ट मिल जाता है। तो इसमें भी 2 टैब्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। जो आपके स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट होंगे वो स्टॉक्स वाले टैब के डैशबोर्ड में मिलेंगे, एंड म्यूचुअल फंड्स वाले आपके म्यूचुअल फंड्स के टैब में मिलेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के नाम है, और किसी भी म्यूचुअल फंड के नाम पे आप जब टैप करेंगे तो एक और स्क्रीन आएगा, उसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको। वो एक तरह से आपका उस म्यूचुअल फंड के साथ आपका रिकॉर्ड है, ऑल द ट्रांजैक्शंस, कितना आपने इन्वेस्ट किया, कितने बार निकाला, कब डाला, वो सारा हिस्ट्री मेंटेन रहता है। वो कुछ इस तरह का दिखता है। एंड उस पेज के ठीक नीचे 2 ऑप्शंस होती हैं, इन्वेस्ट मोर, अगर उसी म्यूचुअल फंड में आपको और पैसे लगाने हैं, और सेल यानी कि रिडीम, अगर उससे निकालने हैं तो ये बटन दबा के आप निकाल सकते हैं। सारे पेमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, चाहे वो UPI हो, नेट बैंकिंग हो, नेफ्ट, RTGS, IMPS, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है पेमेंट के लिए, वो सारे आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे ग्रो पे। Import and switch. So this is a very popular feature on Groww. Import
एक ऑप्शन है जो कि जिसको यूज करके आप अपने म्यूचुअल फंड्स को जो कि ग्रो पे नहीं हो, आप उसको ग्रो पे ला सकते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी और के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है और आप चाहते हैं कि सारा म्यूचुअल फंड एक जगह आ जाए, ग्रो पे आ जाए, तो ये इंपोर्ट ऑप्शन रहता है। इसको यूज करके आप उसको ग्रो में शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपको डैशबोर्ड, आपका जो डैशबोर्ड है उसके ठीक नीचे ही ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे जाके। एंड स्विच इज अ वेरी पॉपुलर फीचर ऑन ग्रो एक्चुअली। मान लीजिए आपने जो एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड्स हैं जो ग्रो पे नहीं किए हैं, वो रेगुलर प्लान के हैं जिसमें कमीशन कट रहा है, आप उसको चाहते हैं कि वो डायरेक्ट प्लान में चेंज कर लें जो कि कमीशन फ्री होते हैं। तो एक बार पहले आपने इंपोर्ट कर लिया, आपको आपके डैशबोर्ड में स्विच का ऑप्शन दिखेगा जिसको यूज करके आप डायरेक्ट प्लान में चेंज कर सकते हैं। आपके पास कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप हमारे को प्लीज ईमेल कर सकते हैं support@grow.in। एंड इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो हमारी ऐप और वेबसाइट दोनों में एक हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन है, आप उसको यूज करके अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पा सकते हैं। और उसके थ्रू आप कॉलिंग और चैट, ईमेल, वो सारे ऑप्शंस भी हेल्प एंड सपोर्ट के थ्रू हैं। कॉलिंग ऑप्शन भी है उसमें। प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड यूट्यूब में। मैं बताना चाहूंगा कि जगदीप सिंह हमारे चैनल की तरफ से आते हैं, ग्रो यूट्यूब चैनल की तरफ से आते हैं। वो हफ्ते में यूजुअली 2 से 3 वीडियो लगाते हैं। इट इज अ वेरी गुड रिसोर्स अगर आप नए लर्नर हैं। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट स्टॉक्स इन्वेस्टिंग एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, मोस्टली स्टॉक्स इन्वेस्टिंग, तो ये यूट्यूब चैनल पे जरूर फॉलो कीजिए। आपको, मैंने नोटिस किया है कि बिगिनर जो होते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस रिसोर्स को काफी हेल्पफुल पाते हैं। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एप्स। हमारे पास 90 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं। सारे म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे पास। हमारी ट्रांजैक्शन BSE स्टार MF के थ्रू होती है। सेबी और एम्फी रजिस्टर्ड हैं। आपका सारा डेटा बैंक ग्रेड सिक्योरिटी से सेफ है। इट्स वी यूज 256-bit encryption and we are an ISO certified company also. Great, that's it. Now we will start taking questions. गौरांग जी भी वेट कर रहे हैं क्वेश्चंस के लिए, तो we'll get started. Great. Just a second, Gaurang. ग्रेट, थैंक यू शेखर। मैंने भी आज 2-3 चीजें नई सीखी आपकी वजह से ग्रुप के बारे में, सो थैंक यू। Oh, that's great. Can you tell the speaker, tell us about the current stock market and how to invest cleverly? Okay, so this is again this. I think you'll have a timeless answer for this question, but can you tell the speaker to tell us about the current stock market and how to invest cleverly? सो आई थिंक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्लेवरली के ऊपर नहीं होता है, इट इज अबाउट द टाइम कमिटमेंट दैट समबडी हैज। अगर आजकल सबके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कंपनीज को रिसर्च कर सकते हैं और उनके बारे में एक व्यू पॉइंट बना सकते हैं और उस व्यू पॉइंट के ऊपर निवेश कर सकते हैं। बट द रियलिटी इज दैट नॉन ऑफ अस हैव द टाइम। ये कहते हैं ना कि पैसिव वर्सेस एक्टिव। आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड फोकस ऑन आवर एक्टिव इनकम एंड लेट प्रोफेशनल मैनेजर्स in my opinion. But when it comes to managing your money, first build an emergency fund, everything else comes after. So that is my personal view कि अगर बहुत टाइम है आपके पास समझने का और आप कंटिन्यूसली करेंगे उस काम को, तो आई थिंक इंटेलिजेंस लेवल तो आजकल every 20-year-old is very smart compared to what we were when we were in our 20s. So and the resources available at your end are endless on the same. Right, great. Thanks for that. Okay, this is another very common question, very popular question that we pose to nearly every guest who joins us. How many mutual funds should we have in our portfolio? Okay. So म्यूचुअल फंड में भी यू हैव टू हैव एन ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि 4 में डाल दो या 8 में डाल दो, 1 इज करेक्ट एंड 1 इज नॉट करेक्ट। टिपिकली मैं अपनी बात कहता हूं, मेरे पास 5 म्यूचुअल फंड हैं और 5 का एक रीजन है कि वो क्यों है। एक फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं लिक्विड फंड में पैसा वहां डालता हूं जहां पे मेरे को इमरजेंसी फंड के लिए यूज करना हो या शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना हो, क्योंकि मैं सोचता हूं कि वो बिल्कुल सेफर है फ्रॉम अदर ऑप्शंस। देयर इज रिस्क इन दैट आल्सो, बट इट इज नॉट दैट इट इज दिस थिंग। सिमिलरली अगर आपके पास 8, 10, 15 म्यूचुअल फंड हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड बाय इटसेल्फ इज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो एक रीजन से इन्वेस्ट करना होता है।
सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ व्यू दैट इंडिया में जो बड़ी कंपनीज हैं वो और बड़ी होंगी, देन यू कैन लुक एट द ब्लू चिप और द लार्ज कैप फंड। वैसे करके हर ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट होता है। सो इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स यू हैव, इट इज व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव एट हैंड एंड व्हाई डू यू वांट टू। आपका होराइजन क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उस पर डिपेंड होता है कि आपको किस चीज में इन्वेस्ट करना होता है। तो सबसे पहले अपने बजट बनाइए, बजट के हिसाब से अपने गोल्स लिखिए, गोल्स के हिसाब से आपको अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है और वैसे ही आप ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड आएगा। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाएंगे, यू विल बी अ हैप्पियर पर्सन एंड अ मच मोर इन्फॉर्म्ड पर्सन व्हेन इट हैपेंस। राइट, थैंक यू। एक्चुअली आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस, इसी में मुझे एक फॉलो ऑन क्वेश्चन जैसा लग रहा है जो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेगा। विद इन द सेम सब कैटेगरी, जैसे आप कह रहे हैं कि गोल बेस्ड होना चाहिए, लेट्स से लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एक XYZ पीरियड के लिए, एंड यू नो अगर किसी इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म है एंड इट मतलब उनको उनके लिए लार्ज कैप कैटेगरी सूट करता है, उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं हर महीने इतना इन्वेस्ट करता हूँ तो इसका 60% या जो भी, ये ऑब्वियसली मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई हार्ड नंबर नहीं है, इतना परसेंट मुझे लार्ज कैप में डालना है, किसी में डालना है। तो विद इन दैट सब कैटेगरी आई थिंक उसमें आप कुछ प्रेफर करते हैं कि कितने म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा हैं या कितने कम हैं, ऐसा कुछ? नहीं सो अगर एक कैटेगरी आपने डिफाइन करी है, then one is good enough because then you want to find the right fund. What you want to look at is that right fund manager or with the experience in that particular fund, उन्होंने लास्ट 5 या 10 साल में रिटर्न क्या दी है उनके पास्ट बैकग्राउंड में। तो यू नो कहने के लिए तो मैं बोलूंगा कि डीएसपी ही चूज करिए बिकॉज वी हैव द बेस्ट मैनेजर्स, बट द फैक्ट दैट रियलिटी है कि आपको अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इट इज in one category I think one, if you ask me, is good enough. उसमें डाइवर्सिफिकेशन करके कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला ज्यादा, स्पेसिफिकली बिकॉज म्यूचुअल फंड इज ऑलरेडी अ डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ स्टॉक्स। So Gaurang, according to you what you investors should do is उनको अपने they have to see कि उनके लिए कौन कौन से सब कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड उनको सूट करते हैं, एंड वंस दे हैव डिसाइडेड कितना परसेंट किस सब कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में डालना है, एक ही काफी है हर एक सब कैटेगरी के लिए। एब्सोल्युटली एक ही काफी है एंड यू डोंट नीड मल्टीपल ऑफ इट बिकॉज उसको फिर मैनेज करने में आपको ही तकलीफ होगी। अगर आपने लेट्स से 4 गोल हैं, आपने अगर 2 ले लिए, 8 या 10 को सोचने में, उनको ट्रैक करने में ही ज्यादा तकलीफ होगी। सो मेरा टिपिकल सजेशन है आपके जितने गोल हैं, एक गोल के लिए एक फंड को चूज करिए और उसमें लॉन्ग टर्म में निवेश करिए। ठीक, ओके, थैंक्स, दैट वाज, आई थिंक दैट वाज अ वेरी in-depth answer. I think we went quite deep into that. Great. So I think ये वाला question मेरे लिए है, is it possible to change bank account while investing in mutual funds? If it's possible, my mutual fund money will go to previous bank account or new bank account. Okay, so on Groww हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आराम से बैंक चेंज कर सकते हैं, एंड जब आप बैंक चेंज करते हैं तो आपका पैसा आपके देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइमरी बैंक अकाउंट इन ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑन Groww। तो आप जब भी रिडीम करते हैं तो पैसा आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में ही जाता है। तो अगर मान लीजिए आपने स्टार्ट किया किसी एक बैंक से और उसको बाद में आपने चेंज कर लिया दूसरे बैंक में और उस समय रिडीम करते हैं, तो पैसा आपके उस समय जो प्राइमरी बैंक रहेगा उसी में आएगा, मतलब आपके दूसरे बैंक में आएगा, राइट? ओके, ग्रेट। सो हाँ, this is something even I struggled with when I started investing. Should I first start saving for emergency fund or into investment to create wealth for self? I think it's a very important question, Shekhar, and this is something that I also grappled with. मेरी जो experience है, if I ask my 20-year-old, then I would say always investment because the environment and the excitement of investment is much higher. Emergency fund is for the older boring people, right? तो but emergency fund always comes first. एक तरीके से कहते हैं ना, what is your insurance for your investment is your emergency fund, कि अगर आपके कोई circumstances में कोई challenge आ जाएगा तो आप अपनी investment से ही निकाल देंगे, and then sometimes you might take away money prematurely from your investment. Hence your insurance for your investment is your emergency fund. So hence start with emergency fund first between 3 to 6 months of your
करंट मंथली और अ फ्यूचर मंथली. लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स आस्क मी सेइंग मेरे को हमको तो अभी नहीं पता हमारे, बट आपको आपके एलुमनाइज के सैलरी तो पता ही है, सो मे बी यू कैन स्टार्ट देयर अराउंड द सेम. सो इमरजेंसी फंड ऑलवेज फर्स्ट. आपके पास पूरी लाइफ टाइम पड़ी है वेल्थ बनाने के लिए, इमरजेंसी बन जाती है. और इमरजेंसी फंड भी थोड़ा थोड़ा ग्रो होता है, इतना ज्यादा नहीं ग्रो होगा, बट इट विल ग्रो कंसिस्टेंटली. जस्ट एज अ क्विक, आई थिंक आपने बोला, मैं फिर भी दोबारा से पूछ रहा हाँ हूँ, जी. आपके हिसाब से आइडियल इमरजेंसी फंड कितने महीने का होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट ड्यूरेशन? सो 3 to 6 months ऑफ योर मंथली सैलरी. और उसको बनाने में भी लोगों को 1.5 साल से 3 साल लगते हैं. तो टाइम लगता है, बिकॉज यू हैव टू टेक आउट अ लॉट ऑफ योर मनी. नाउ यू कैन इन्वेस्ट इन 2 places. एक तरीका है रिकरिंग डिपॉजिट करने का, दूसरा तरीका है लिक्विड फंड्स में डालने का. बिकॉज अमंगस्ट ऑल द अदर थिंग, लिक्विड फंड इज अ सेफर कैटेगरी. अमंगस्ट अदर थिंग देयर इज रिस्क इन इट ऑल्सो, बट देयर इज सेफर देन अदर थिंग्स. इन इमरजेंसी फंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर रिटर्न. हम रिटर्न के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम एक सोच रहे हैं कि एक पूल ऑफ कैपिटल बनाए कि कभी इमरजेंसी हो तो उस पर डिप कर सके. तो 3 to 6 months आपके फीस एंड मंथली सैलरी के. Okay. The next question is, the general trend of the market in the long run is to grow. So investing in index fund is still considered risky. Why? सी, इंडेक्स फंड है क्या? एक सबसे पहले ये समझते हैं, इंडेक्स फंड इज नथिंग बट अ सिमिलर टू द इंडेक्स. इंडेक्स इज नथिंग बट अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स. सो सेंसेक्स जिस तरह टॉप 30 कंपनीज का एक बास्केट है, निफ्टी उस तरह टॉप 50 कंपनीज का बास्केट है. नाउ देयर इज अ रिस्क, राइट? अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहें तो अभी रिलायंस जितना ऊपर चढ़ा था, अभी वापस नीचे गिर रहा है. नाउ देयर इज रिस्क इन रिलायंस. नाउ देयर इज अ प्रोपोर्शन ऑफ रिलायंस इन द इंडेक्स फंड ऑल्सो. सो देयर इज रिस्क इन इंडेक्स फंड. जिस तरह मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, इंडेक्स फंड भी ऊपर नीचे जाएगा. बट वो कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में, हमने जिस तरह हिस्ट्री में देखा है कि ओवर लॉन्ग टर्म द मार्केट्स हैव गॉन अप, राइट? छोटे टाइम में ऊपर नीचे हो सकता है, but so there is risk because as the market turns, index funds are nothing but mimicking the Sensex or the Nifty in that context. So they will act very similarly, not exactly similarly. There is some tracking error कहते हैं जिसको, but they act very similarly to the Sensex or Nifty because they are mirroring them. एक आसान तरीका है आपका इन्वेस्ट करने के लिए. ये एक बेसिकली एक तरीका है, it becomes a kind of investment in a way, which comes at a lower cost than other forms of investment. Okay, great. Okay, this is a very interesting question. एक क्वेश्चन है, सर जिनका खुद का या फैमिली का घर नहीं है, उन्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए द इन्वेस्टमेंट जर्नी? अपना घर नहीं है, हाउ शुड दे अप्रोच इन्वेस्टिंग? आई थिंक इन्वेस्टिंग इज, और अपने घर या रेंटेड घर में कोई फर्क नहीं है आजकल. बिकॉज क्या है कि आजकल रेंटल जो कॉस्ट है शहरों में वो बहुत कम है उसके ओनरशिप कॉस्ट से. इन द 90s में बहुत अलग था. 90s में प्रॉपर्टी रिलेटिवली सस्ती मिलती थी और बहुत ग्रोथ थी. आजकल देखें तो प्रॉपर्टी वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है, और उनका कंपैरेटिवली रेंटल यील्ड जो कहते हैं, जो कॉस्ट ऑफ रेंटल टू द प्रॉपर्टी वैल्यू काफी कम है. So it does not matter if you own a house or don't own a house. If your intention is to have a house, start saving for that goal. कि मेरे को 10 साल में घर खरीदना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं. But having a home or not having home should not deter you. Savings has to happen first. Home can be one objective or one goal of your savings context. Great. The next question is for me, I think. Yes. FNO, when is FNO coming to Groww? So हम hard deadlines नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है और हम अभी भी work from home ही कर रहे हैं. So things are weird for us at office. Some things are very very fast. जो हम जितना सोचा था पहले जितने टाइम में करेंगे उससे जल्दी भी हो जा रहा है, लेकिन कुछ चीज में थोड़ी देर आ रही है. But overall things are on track. I cannot promise a date, but I can promise you that अगर आपने हमारी डेवलपमेंट का स्पीड देखा, आप रियलाइज करेंगे that we have rolled out many features very very fast in the last 5-6 months. तो आप उस स्पीड को ध्यान में रखिए, मैं कोई डेट तो आपको नहीं बताऊंगा.
can you please tell us some ways to save tax? आई थिंक ये सबसे बहुत ही अहम साल है. इन योर 20s फाइंड एंड लर्न एज मच एज वेज टू सेव टैक्स. दो तीन मोटे मोटे तरीके हैं. एक तो आपके पीपीएफ इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप अप टू 50,000 रुपया टैक्स फ्री डाल सकते हैं. उसकी जो इनकम होगी उस पर आपको टैक्स नहीं. 1.5 लाख इज योर लिमिट. आप उसमें पीपीएफ, एनपीएस या फिर एक कैटेगरी है ईएलएसएस करके, वो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड कहते हैं, जिसमें आपको 3 साल का लॉक इन है. अगर आप देखें तो पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन रहता है. एनपीएस में आप जितना भी अभी निवेश करेंगे वो आपको जब आप 60 इयर्स के रिटायरमेंट एज के आ जाएंगे तब होगा. बट ईएलएसएस एक कैटेगरी है जिसमें आप अप टू 1.5 लाख रुपीज तक डाल सकते हैं और वो 3 साल तक लॉक इन है. उसके बाद आपके पास अवेलेबिलिटी है उसको रिडीम करके उसको यूज करने के लिए. तो उससे आपको आपका टैक्स डिडक्शन कम होता है. दूसरा तरीका है इंश्योरेंस. इंश्योरेंस लेने से, लाइफ इंश्योरेंस लेने से आपका कॉस्ट थोड़ा कम होता है, उस पर आप डिडक्शन दे सकते हैं. और दूसरे छोटे छोटे तरीके हैं, जिस तरह एचआरए है. अगर आपका घर रेंट पे है तो उसका रेंट अलाउंस ले सकते हैं. ऐसे करके अलग अलग तरकीबें हैं. बट इन माय व्यू आई हैव फाउंड ईएलएसएस एज द बेस्ट वे टू सेव टैक्स, बिकॉज वो 3 साल में मेरे पास अवेलेबल है. अगर मेरे को 7-8 साल में कभी जरूरत भी पड़ जाए वो पैसे की, वो अवेलेबल पड़ जाता है. ओके, सो एक क्वेश्चन है, मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा. आई थिंक थोड़ा और इसको जनरलाइज कर देंगे सो दैट इट हेल्प. द क्वेश्चन इज रेलेवेंट टू मोर एंड मोर पीपल. अगर आपके पास कोई लोन है जो आप चुका रहे हैं, लेट्स से इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल और होम लोन, हाउ डू यू गो अबाउट इन्वेस्टिंग इफ there's a लोन जो आप एक लोन है जिसके लिए आप ईएमआई भर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट्स कैसे हैंडल किया जाए? बिल्कुल. तो सबसे पहले लेट अस टेक द मोस्ट एक्सपेंसिव लोन. जितना ज्यादा एक्सपेंसिव लोन है उसको पहले निकालना जरूरत है. तो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव लोन होता है क्रेडिट कार्ड का लोन. तो मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि क्रेडिट कार्ड का लोन आप इन्वेस्टमेंट बल्कि मतलब रोकना जितना ना रोक सके मत रोकिए. बट क्रेडिट कार्ड शुड बी पेड बैक एज सून एज पॉसिबल. कि क्रेडिट कार्ड पे लोन ज्यादा टाइम रखना नहीं चाहिए, बल्कि लेना ही नहीं चाहिए. दूसरा है एनी पर्सनल लोन यू हैव टेकन, उस पे आपको ले देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कार लोन होता है, वो नॉर्मली 4 से 5 साल के लिए दिया हो जाता है, और आपके पास कभी एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको आप वापस कर सकते हैं. बट वो एक 4 साल तक, आप 3-4 साल तक रख सकते हैं. सो इन माई व्यू एक्सपेंसिव लोन्स, जो बहुत महंगे लोन कहते हैं, वो टिपिकली पर्सनल लोन या फिर ये अपने कोई परचेज के अगेंस्ट लोन लिया या फिर क्रेडिट कार्ड की, वो पहले पेमेंट करना बहुत जरूरी है. फॉर द रेस्ट ऑफ देम यू कैन वेट आउट. एक बैलेंस ऑफ, ऐसा नहीं कर सकते कि आई कैन नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग फॉर अ 15-year पीरियड. 15 साल बहुत होता है अगर मैंने होम लोन के लिए लेके रखा है. तो मेरे हिसाब से दोनों चीज चालू रखिए. बट अगर कोई लोन लेते हैं, पहले ईएमआई भरिए, उसके बाद जो पैसा बचे उसको निवेश करिए. बट ईएमआई कभी अपने टाइम से में कभी चूकिए मत ईएमआई को पेमेंट करने के, एज अ रूल. गौरंग, एक और क्वेश्चन, इसी में एक फॉलो अप क्वेश्चन है जो विच इज समथिंग दैट आई फील दैट माइट हेल्प यूजर्स. अगर हम लोन लेने जा रहे हैं, हमने लोन लिया नहीं है, हम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो वी डू हैव सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन व्हाट ईएमआई वी आर टेकिंग, राइट? हमारी ईएमआई कितनी होगी? मान लीजिए हम लेट्स से कार लोन ले रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको 3 साल में चुका दे या 7 साल में चुकाए, ऐसा यूजुअली. तो उस समय हमारे पास वो ऑप्शन है कि ईएमआई ज्यादा करके जल्दी खत्म कर दो, या ईएमआई छोटा रखो और ज्यादा समय के लिए रखो और इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पाएंगे वैसे. तो उसमें आप क्या सजेशन देंगे? तो एक तरीके से एक छोटा थंब रूल कहते हैं कि अपना ईएमआई का पोर्शन 30% से ऊपर ना लेने की कोशिश करें. सो अगर आपकी सैलरी लेट्स से 1 लाख रुपया है, तो 30,000 रुपए से ऊपर का ईएमआई ना लें, बिकॉज रियलिटी में रेगुलर खर्चे रहते हैं, राइट? एंड सो टिपिकली 30% इज अ थंब रूल, कि उससे ज्यादा नहीं. मैं आइडियली बोलता हूँ 20% ऑफ योर इनकम शुड बी योर ईएमआई अमाउंट. थोड़ा बफर रख के रखना चाहिए. कभी कभी क्या पता चले कि भी इनकम कम हो जाए, या फिर सडनली एक कभी कई लोगों की इनकम पॉज हो जाती है, जिस तरह बीपीओ वर्कर्स हैं हमारे, उनको मतलब सैलरी नहीं मिली है काफी महीनों से. सो 20% to 30% इज अ गुड रेंज, नेवर क्रॉस 30.
ideally of your total loan EMI percentage. Also, just since we're talking about percentages, आपके हिसाब से ये क्वेश्चन है नहीं, मैं पूछ रहा हूँ because curiosity, आपके हिसाब से मंथली इनकम का कितना परसेंटेज हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसे EMI में आपने कह दिया 20 से 30, इन्वेस्टमेंट में कितना? तो जिस तरह मैंने कहा था 50-30-20 जो रूल है ना, 50 आपके नीड में, 30 आपके वांट में, 20% ऑफ योर मनी शुड ऑलवेज बी सेव्ड। आप कुछ भी करिए, आपकी वो एक तरीके से घर भी एक तरीके से वांट ही है ना, एक तरीके से, मतलब आप अगर देखें, या फिर अगर गाड़ी का आपने ली, गाड़ी एक 100% एक वांट है, इट इज अ जरूरत, बट अगर उसको लोन पे लिया तो वो वांट ही, क्योंकि आपने पहले सेव नहीं किया था उसके लिए, राइट? तो जो भी कहें, 20% ऑफ योर मनी शुड बी इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग, या फिर, और उसमें भी रूल होता है कि इमरजेंसी फंड आप पहले बनाएं, उसके बाद आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स कंप्लीट करें, उसके बाद अगर आपके कोई इंश्योरेंस या लोन EMI है वो निकालें, फिर टैक्स सेविंग प्लानिंग करें, और उसके बाद ये 4 बकेट हो जाएं, उसके बाद अपना स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने की सोचें। बट इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म नीड, कोई लैपटॉप नीड, मोबाइल फोन चाहिए, कुछ भी आपकी शॉर्ट टर्म नीड है, उसको पहले कवर करिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। Next question is, what if AMC shuts down? What happens to our money? अच्छा, ये एक AMC, ऑल म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई AMC बंद हो जाती कि वो आपका पैसा लेके भाग सकते हैं। दीज आर सेबी रेगुलेटेड नॉर्म्स। देयर आर नॉर्म्स इन प्लेस दैट अगर फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो कोई भी रीजन से पर्टिकुलर फंड नहीं वापस कर पा रहा है, वो बंद हो रहा है, तो दे हैव अ मैकेनिज्म इन विच दे हैव टू रिटर्न योर मनी बैक टू द इन्वेस्टर। सो सिंस दिस इज अ रेगुलेटेड एंटिटी, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई स्कीम चला रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है। दिस इज वेल रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अंडर द नॉर्म्स ऑफ सेबी, व्हिच इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये तरीके, एक तरीके जिस तरह बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय RBI, ऑल म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी। Right. Okay. I think something that many of our investors need to know is that जो म्यूचुअल फंड का पैसा होता है वो एक्चुअली जो शेयर्स म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं वो म्यूचुअल फंड्स का नहीं होता है, वो दे जस्ट मैनेजिंग द मनी, दे डोंट ओन द शेयर्स that they are purchasing, they're simply managing the assets. एब्सोल्युटली, वो सिर्फ आपकी तरफ से डिसाइड करते हैं, बट आपका ही पैसा स्टॉक मार्केट में डिफरेंट स्टॉक्स में डिवाइड होता है और करता है। बिकॉज ये रीजन क्यों है, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड और इंपॉर्टेंट हो कि ये म्यूचुअल फंड बनाया क्यों गया कैटेगरी। 2 तरीके से, एक तो आप हमारे सबके पास टाइम नहीं है कि फुल टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके या निवेश कर सके। दूसरा कि आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को मारुति का एक शेयर का 10% चाहिए। मतलब अगर एक स्टॉक मारुति का 7,000 रुपए है तो मेरे को सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना है मारुति में, वो ऑप्शन आता नहीं है। आपको एक पूरा स्टॉक लेना पड़ेगा जो भी प्राइस है मारुति का, एग्जाम्पल की तरह। बट अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1,000 रुपए से भी बहुत सारी कंपनियों में साथ में निवेश कर सकते हैं। सो इट सॉल्व्स मल्टीपल पीपल्स प्रॉब्लम, एंड इसीलिए ये कैटेगरी बनाया गया जो पैसा, आपका पैसा लेके डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो वो शेयर्स आपके हैं होते हैं, वो आपकी ओनरशिप होती है। हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर सिर्फ डिसाइड करते हैं कौन से स्टॉक मांगे जाना चाहिए और कौन से में नहीं जाना चाहिए। Right. Okay. So we'll move on to the next question. It's actually very interesting. There's this, the person asking the question is only 23 years old, and he is asking, how much exposure should I have in gold? I have debt, I have equity, and I have direct stocks, and now I'm planning to add gold. तो कितना % gold में उनको invest करना चाहिए as a 23-year-old? See, I think gold, before we make any investment, we have to understand कि उसका objective क्या है। See, typically gold has been, एक तो gold हमारे mothers लेती थी क्योंकि gold back then was the only store value of capital। एक तरीके से बिकॉज अपने पास ऑप्शन नहीं होता था कि जिस तरह बैंक नेटवर्क्स हैं आज और ऑनलाइन है, वो ऑप्शन नहीं होते थे, तो गोल्ड बिकेम अ डिफैक्टो करेंसी ऑल्सो फॉर ऑर्नामेंट्स एंड अदर थिंग्स अराउंड द सेम। मेरे हिसाब से, मैं अपने एग्जांपल देता हूं, मैं टिपिकली 5 से 60% अपने ओवरऑल वेल्थ को इन्वेस्ट करता हूं
बट मैं गोल्ड को टाइम नहीं करना चाहता. बेसिकली इट इज नथिंग बट डाइवर्सिफिकेशन. सो आई डाइवर्सिफाई यूजिंग गोल्ड. गोल्ड म्यूचुअल फंड की तरह से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. बट टिपिकली ये मेरा एग्जाम्पल है. मैं अपने एग्जाम्पल में 5 से 7% टोटल इन्वेस्ट करता हूँ. सब लोगों का अलग अलग व्यू रहता है. आजकल सिंस गोल्ड इज एट अ वेरी हाई परसेंटेज और वेरी हाई रिटर्न, लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग ओवर एक्सपोजर. हम भूल जाते हैं कि ये पीरियड 2011 से 2018 तक गोल्ड में ज्यादा मूवमेंट नहीं आई थी. बहुत फ्लैट था, बल्कि थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा था. सो गोल्ड ऑल्सो ओनली गोज अप इन लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में गोल्ड में ऐसा इन्वेस्ट करना नहीं सही होता है. Great. So the next question is, can you give examples of gold and the instruments, of goals, Yes. goals and the instruments related to it? So I think many people, when they hear goal-based planning, they're not हाँ जी. sure of what goals comprise of. So maybe नहीं, you can throw some light. बिल्कुल. एक तो सबसे पहले अपना गोल होना चाहिए इमरजेंसी फंड बनाने का, फॉर प्लानिंग फॉर इमरजेंसी. उसमें मैं दो तरीके से कर सकता हूं. आप एक रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू सोच सकते हैं, या फिर सेफर डेट फंड्स विच इज लिक्विड फंड या ओवरनाइट लिक्विड फंड में आप डाल सकते हैं. सेकेंड कैटेगरी होती है जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड है. लेट्स से आई हैव द नीड टू बाय अ लैपटॉप और अ फोन, और लेट्स से गाड़ी भी लेना है, मेरे को 2 साल में गाड़ी लेना है. तो वो भी पैसा आप अपने लिक्विड फंड में डाल सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मेरे को अगर घर खरीदना है, इफ आई वांट टू बाय अ होम विच इज आई डोंट हैव टू बाय टुडे, बट मेरे को 7-8 साल के बाद या 10 साल के बाद खरीदना है, जब मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है इस पैसे का, उसको मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए. ये जितना डाल सकते हैं. अगर कभी किसी को मार्केट के उतार चढ़ाव से ये डर लगता हो, तो एक कैटेगरी है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जिस तरह आप डैफ कहते हैं इंडस्ट्री में, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं. उसमें वो फंड मैनेजर क्या करता है, बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यूएशन कि कितना एक्सपेंसिव स्टॉक है और कितना उसको डेट और इक्विटी में ऑटोमेटिकली डालता है. तो यू हैव टू, बेस्ड ऑन योर नीड, यू शुड इन्वेस्ट. But when you are reaching closer to your goal, always go for safer investments than for riskier investment. Let's say आपका 10 साल का गोल था, आपने 8 साल इक्विटी में किया, but when you are getting closer to your goal, shift to safer or less risk investments. Oh, great. Another very interesting question. Which funds should be a part of your emergency fund? मैं इमरजेंसी फंड में, मेरे हिसाब से जो मैं इन्वेस्ट करता हूं, मैं लिक्विड फंड में ही इन्वेस्ट करता हूं, बिकॉज उसमें कंपैरेटिवली रिस्क सबसे ज्यादा कम है और कंपेयर टू अदर डेट फंड्स. बिकॉज उनका पैसा दो जगह मोड़ नहीं जाता है, एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और AAA, बेसिकली एक तरीके से रेटिंग ऑफ टॉप कंपनीज और टॉप लेंडर्स ऑफ द कंट्री. तो in emergency fund, I don't want to take too much risk, and I prefer liquid fund as a category to invest in. Okay, great. What do you prefer, mutual fund or ETF? So I think अभी ETF इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. So there's a certain amount of क्यूरियोसिटी कि लोग जानना चाहते हैं कि ETFs कैसे चलते हैं और उनके बीच, म्यूचुअल फंड्स और ETFs के बीच में क्या फर्क है, how does it work? So maybe you can throw some light. बिल्कुल. So ETF एक तरीके से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का नाम है. ये बेसिकली एक्सचेंज में, मतलब आपके BSE और NSE में जिस तरह आप खरीदते हैं बेचते हैं, आप उसी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं. So ETF is one method to invest through a category. बट ETF में आप समझिए कुछ ही टाइप की ETFs मिलती हैं आपको लिक्विड एक तरीके से, मतलब यू कैन इन्वेस्ट ओनली इन डेट थ्रू दोज लिक्विड ETF, या फिर आप सेंसेक्स की ETF, मतलब वो जो टॉप 30 स्टॉक्स या टॉप 50 स्टॉक की हम बात कर रहे थे, उसी को प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं. बट इफ यू वांट अ एक्टिव मैनेजर मैनेजिंग योर मनी, then you have to consider mutual fund as a method, because there is active management, there is a management constantly looking. ETF एक एक्सचेंज, मतलब सिस्टमैटिक, कंप्यूटर ही डिसाइड करके एक रूल के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं. Okay, great. Next question शायद मेरे लिए है.
हाउ टू इंक्रीज एग्जिस्टिंग SIP अमाउंट एंड ग्रो। तो बहुत जल्दी हम ग्रो पे एडिट सिप फीचर लाने वाले हैं, जिसको यूज करके आप अपने SIP अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास इसका एडिट सिप का फीचर सपोर्ट नहीं है। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। फर्स्ट इज यू कैन, अगर मान लीजिए आप 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 2000 इन्वेस्ट करें, तो आप एक और SIP उसी म्यूचुअल फंड में जाके स्टार्ट कर लीजिए। 1000 का चल रहा है, एक और 1000 का कर लीजिए। या नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, जो एग्जिस्टिंग SIP है उसको कैंसिल कर दीजिए, फिर से उसी म्यूचुअल फंड में दूसरा SIP स्टार्ट कीजिए और उस अमाउंट को आप, जो नया अमाउंट है उसको उसमें डाल दीजिए। राइट। Can we consider debt funds for storing emergency money? ये बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हैं। इमरजेंसी के लिए डेट फंड्स ही ठीक है। इमरजेंसी फंड को कभी आप इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, बिकॉज इक्विटी के उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं। डेट फंड में रिस्क होता है बट कम होता है, बिकॉज यू आर गिविंग लोन्स टू अदर थिंग। इन डेट फंड कैटेगरी मैं रेकमेंड करता हूँ, लिक्विड फंड एक कैटेगरी है जो कंपेरेटिवली बाकी सब डेट फंड से ज्यादा सेफ है। तो इन इमरजेंसीज यू गो फॉर एज मच सेफ्टी एज यू कैन, बट देयर इज ऑल्सो रिस्क इन अ लिक्विड फंड, बट वो रिस्क काफी कम रहता है comparatively. Okay, great. And I think this is the last question for the day. Which criteria to look at while choosing a mutual fund? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। सबसे पहले बिफोर यू क्राइटेरिया, डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव एंड योर टेन्योर एज वेल एज योर रिस्क एपेटाइट। ये तीन से आपको एटलीस्ट सिलेक्ट होगा कि कौन से कैटेगरी में होगा। नाउ वंस यू गेट टू अ कैटेगरी, कपल ऑफ थिंग्स यू शुड लुक एट। एक तो सबसे पहले फंड मैनेजर के बारे में पढ़िए और उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़िए, कितने साल से वो कर रहा है वो पर्टिकुलर काम और उसका पास रिकॉर्ड कैसे रहे, हाउ स्टेबल हैज द फंड मैनेजर बीन एंड हाउ व्हाट इज द रिटर्न दैट द फंड मैनेजर ओवर लॉन्ग पीरियड। 1 और 3 साल को अवॉइड करिए देखना, बिकॉज बहुत छोटे टर्म में बहुत सारे मार्केट फैक्टर से फर्क आता है। 5-7 साल का उसका रिटर्न देखिए। और एक और तरीका होता है, उसकी एक रेटिंग आती है मॉर्निंग स्टार की तरफ से या फिर अलग एजेंसी से रेटिंग होती है। एज वेल एज यू कैन ऑल्सो लुक एट, अगर दो फंड बिल्कुल सेम जैसे लग रहे हैं तो उनका फिर एक्सपेंस रेशियो से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। बट व्हेन यू इन्वेस्ट, प्लीज रीड अबाउट दीज डिटेल्स बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। थोड़ा टाइम लगता है बट वो एक बहुत ही आप कॉन्फिडेंस से फिर इन्वेस्ट कर पाएंगे। Okay. With that, I think we've come to the end of this session. Thank you so much, Gaurang. आप यहाँ आए, हमारे questions को आपने आंसर किया. It was a great session. आप सभी का यहाँ हमारे अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट इस सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आपके कोई भी अगर डाउट्स हो, आप बार बार इन सेशंस में आके बार बार ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हर हफ्ते हमारे पास नए गेस्ट होते हैं, बहुत सारे गेस्ट बार बार आते हैं। आई एम श्योर मिस्टर गौरांग विल ऑल्सो, मतलब दिस इज नॉट द वन टाइम ही इज कमिंग, वो आएंगे, ये पहली बार है, इसके बाद भी आते रहेंगे। सो वील सी मिस्टर गौरांग अगेन अगेन। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो, प्लीज कीप ऑन आस्किंग एंड वील ट्राई एंड आंसर एवरी सिंगल वन ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन।